I believe God is going to deposit something in your heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तुम्हारे हृदय में कुछ आज उंडेलने वाले If हैं। God is ready to deposit, और प्रभु तैयार है उसे उंडेलने के लिए। but are you ready to receive it? क्या आप तैयार है उसे पाने के लिए? Amen. मैन So, what kind of church is a biblical church? कि कौन सी कलीसिया है जो पवित्र शास्त्र के ऊपर आधारित है? The biblical church is subject to Christ. वो कलीसिया जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, वो मसीह के अधीनता में रहती है। Those who have missed, I want to just give you a glimpse. और जिन्होंने मिस किया उनको मैं थोड़े में बताना चाहता। You know, is the church of Christ a biblical church in the last days? अंतिम दिनों में क्या मसीह की कलीसिया ये पवित्र शास्त्र पर चलने वाली कलीसिया है? So we put the base on Ephesians 5:24. तो हमने उसका बुनियाद डाला एफिसियों का 5:24 के Just अनुसार। as the church is a subject to Christ. जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, That means if the church of Jesus Christ is subject to Jesus Christ, यानी अगर यीशु मसीह की कलीसिया मसीह के अधीन में है। you know, one day Jesus was preaching. एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। Matthew 21:25-26. Listen to this carefully. Make a note. Matthew chapter 21:25. मत्ती का 21 अध्याय 25 वचन। Some of the Pharisees and Sadducees, they came to Jesus. कुछ फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए। The baptism of John, where was it from? What a Yo- question. From heaven or from men? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग से या मनुष्य की ओर से? Oh, this is the biggest question. The baptism that John gave, it came from heaven or from men? Asking Jesus Christ. बहुत ही अच्छा सवाल। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो कहाँ से था, स्वर्ग से था या मनुष्य की ओर And से? the Bible said they reason among themselves. फिर बाइबल कहता है कि आपस में उस बारे में विवाद करने लगे। And you know, saying, if we say from heaven, he will say to us, why then did you not believe him? यदि हम कहें कि वो स्वर्ग की ओर से है तो वो हमसे कहेगा कि तुमने फिर उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? हाँ, प्रतीति क्यों नहीं की? Okay. If Jesus said it is from heaven, if they say if it is from heaven, Jesus will, why don't they did not believe? अगर वो कहते कि यीशु स्वर्ग से था तो फिर वो कहेंगे कि तो फिर तुमने विश्वास क्यों नहीं किया? 26 please. But if we say from men, we fear the multitude, for all count John as a prophet. पर यदि कहे मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते Rest थे। all you read in home, because I will not go in this subject today. I'm just बाकी giving का the, सब आप घर में पढ़े। okay, these all I taught then. ये सब मैंने उन्हें सिखाया। Okay. The two possible sources of a biblical church is, तो पवित्र शास्त्र पर आधारित जो कलीसिया, उसके दो सूत्र होते हैं। they go by the teachings of Jesus वो लोग यीशु मसीह के शिक्षण पर चलते हैं and they practice what Jesus taught them. और यीशु ने जो उन्हें सिखाया उसके अनुसार वो फिर चलते भी हैं। That is a biblical church. उसे कहते हैं पवित्र So शास्त्र पर आधारित कलीसिया। non-biblical church, एक कलीसिया जो पवित्र शास्त्र पर आधारित नहीं they है, are not serious about the words of Christ. यीशु के शब्दों को या वचनों को वो गंभीरता They से are नहीं not लेते, subject to Christ. यानी वो प्रभु के अधीनता में नहीं आते। Okay. That is the thing. वो चीज है The biblical church, वचन पर आधारित जो कलीसिया है, whatever God says, they believe it. जो भी प्रभु कहता है वो उस पे विश्वास करते They हैं। say faith comes by what God says. That is biblical church. वो कहते हैं विश्वास तो प्रभु के वचन या प्रभु जो कहता है उस पर आधारित है। Walking वो in a वचन का अनुसार की कलीसिया walking in a biblical church means है। पवित्र वचन पर चलने वाली कलीसिया का मतलब है walking by what God has said. यानी प्रभु जो कहता है उसके अनुसार कार्य करना। This all learned in deep. हम सब एक गहराई में सीखे। Okay. And then I spoke about the need of a biblical church. फिर मैंने बताया कि एक पवित्र वचन पर चलने वाली कलीसिया क्यों चाहिए। The biblical church always walk in the scriptural authority. It will not go by your own Google minds. देखो पवित्र शास्त्र की कलीसिया जो है हमेशा आत्मिक अधिकार लेकर चलती है, अपने खुद के दिमाग या गूगल के द्वारा नहीं चलती है। Colossians 3:17 please. कलोसियों का 3:17। And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus,
giving thanks to God the Father through him. Wow. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद But the करो। unbiblical church, कलीसिया जो वचन पर आधारित they नहीं do है, many things which has no authority from Christ's word. देखो वो बहुत सारे कामों को तो करती है लेकिन उनका अधिकार प्रभु के वचन से नहीं आता है। 2 John 9, please. दूसरा यूहन्ना का 9। Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have what? Does not have what? God. If you don't abide in the words of Jesus, you don't have God. जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, हाँ. उसके पास परमेश्वर नहीं You है। know everything. आप सब कुछ But you जानते हैं, don't abide in Christ's words. That means यानी- you are not a biblical church. You are an unbiblical church. यानी तुम मसीह की जो शिक्षा है उस वचन के अनुसार काम नहीं You कार्य नहीं walk करते and you हो, do- यानी तुम एक ऐसी कलीसिया हो जो पवित्र शास्त्र पर आधारित नहीं है। You walk and you do without having no authority. यानी आप अपना काम करते जाते हो लेकिन आपके ऊपर कोई आत्मिक अधिकार नहीं But है। he who abides in the doctrine of Christ has both the Father and the Son. Wow, Trinity. पर जो कोई मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। But there are some people have changed according to, hey, Gen Z, we are in Gen Z. What? Gen Z. Oh, Dad, we are Gen Z, right? Right, wait, let me give you one word. आजकल की जो पीढ़ी कहते हैं हम जेनजी है, I know you're Gen नाचो, Z, गाओ। but God is not Gen Z, right? लेकिन प्रभु हमारा जेनजी नहीं है। हाँ He या is ना? the same yesterday, today and forever. Already he spoke. वो कल जो था वो आज है और हमेशा के लिए He वैसे said, I ही will रह गया। change not. वो कहता है मैं कभी न बदलने You वाला Gen Z, ईश्वर you हूँ। change and you go to hell Z. और आप जेनजी लोग बदल जाते हो, To hell Z, बोलना hell हेल्जी Z. आप नरक हेल्जी Z. आप हेल्जी जाते नरक जी जाते हो। Oh, Evan G, जाके hell Z, right? So what I want to tell you is Galatians chapter 1, 6 and 9. See this very carefully. गलतियों का पहला अध्याय 6 और 9 देखो क्या For कहता some है। people, details doesn't matter, brother. कुछ लोग कहते हैं कि इतने डिटेल में या विवरण में कुछ करना जरूरी नहीं रहता All the है। Gen Zs, listen to me. सारे जेनजी अभी मेरी Paul बात says, सुने। I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। Holy prakar. That means you need to abide. If you abide in Christ, you are abiding in a biblical church. If you're not, you're unbiblical, having no authority, no scriptural guidance. यानी अगर तुम मसीह में स्थिर हो तो मसीह के वचन पर आधारित जो वचन है उसके उस आधार पर ही तुम कार्य करोगे या उसके अनुसार चलोगे। Go to next. अगर तुम ऐसे नहीं करते हो यानी तुम्हारे ऊपर कोई आत्मिक अधिकार नहीं है और तुम एक अपवित्र शास्त्र के अनुसार चल रहे Which हो। is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Gen Z. पर वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना चाहते हैं। सो अनबिब्लिकल चर्च क्या करता है? सब डिसिप्लिन्स को क्या करता है? बिगड़ना चाहता है। इट्स ओके, कैजुअल, चलता है। एक ऐसी कलीसिया जो वचन पर नहीं चलता आधारित है। नहीं है वो क्या कहता है? वो प्रभु के वचन को बिगाड़ना चाहता है। वो सब चीज में कहेगा ठीक है कुछ भी कर सकते हैं नो आप। नो नो नो, डिसिप्लिन। सब- से विथ मी, डिसिप्लिन। वो आई एम ए शिस्त नहीं बिब्लिकल चाहते। चर्च। कहो कि I मैं abide परमेश्वर in के Christ's वचन पर word. आधारित कलीसिया हूँ। मैं Amen. मसीह में स्थिर हूँ। So when you abide in Christ's word, sometimes Christ showed the love, sometimes Christ corrected you, sometimes Christ rebuked you. तो अगर Is it मसीह okay? के कलीसिया में आप स्थिर हैं, स्थिर व्यक्ति हो मसीह में, तो कभी कभी प्रभु आपको प्यार दिखाएंगे, कभी कभी आपको लाठी दिखाएंगे, कभी कभी वो आपको सुधारेंगे, कभी कभी आपको वो Only one reason. एक ही कारण है। All these things he wants you to put to heaven. That's all. एक ही कारण है क्योंकि वो चाहता है कि तुम स्वर्ग न चुके। हम लोग we listen to other gospel
and we mock Christ. हम दूसरे लोगों का सुसमाचार सुनते हैं, अन्य सुसमाचार सुनते हैं और हम मसीह को श्रापित Now करते listen to हैं। this, mark in your Bible and put it on your wall of your house. अभी ये अपने बाइबल में सब लोग रेखांकित कीजिए 8वां वचन और अपने दीवारों पर लिख But कर रखिए। even if we or an angel from heaven, whoa, what a word, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be what? Accursed. उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। Oh, brother, we need to change according to the times and seasons. तो Oh, where it is हमें written? समय और मौसम के अनुसार हमें बदलना है। No mosam, no season. Jesus is the same yesterday, today, and forever. आज का His जो- words will not change. His compassion faileth not. He is the same God. आज जो मौसम चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, उसके अनुसार हमें बदलना। अगर आप कह रहे हो यीशु मसीह जो कल था वो आज और युगानुयुग वही परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाले ईश्वर हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then verse 9 says, और फिर 9वां वचन कहता है, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you what you have received. Oh, hello. जैसे हम पहले ही कह चुके हैं वैसे ही अब भी कहता हूं कि अगर सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो चुप चुप के सुनना, चुप चुप के. That means you are changing your track from the biblical principles to the unbiblical principles. यानी तुम अपने पटरी से निकल गए हो और पवित्र शास्त्र का अनुसार जो उसके सिद्धांत है उस सिद्धांत से निकल कर तू अपवित्र ऐसे सिद्धांतों पे चल रहे हो जो पवित्र शास्त्र के अनुसार That नहीं means, है। Pastor, I should not hear somebody. हाँ पास्टर, उसका मतलब मैं दूसरों का मैं संदेश नहीं सुन सकता। First you listen to me, then you listen to others. पहले तुम मेरी बात सुनो फिर दूसरों को सुनो। That's what Paul is saying. I already preached you. पौलुस वही कह रहा है कि मैंने तुझे But when you have प्रचार a किया, question, सुसमाचार सुनाया। why you don't come? मेरा सवाल है फिर तुम लोग आते क्यों नहीं? Why you go to Google? गूगल में क्यों जाते हो? Google uncle will tell you, अरे this all okay. हाँ, And Google uncle will अपना मैप का रास्ता भटकता है कार में, सोचो तुमको वचन में कितना भटकाएगा, समझ गए ना? गूगल तो फिर तुम्हें भटका देगा तो जो है हमको रास्ता गूगल भटकता बोलेगा हाँ ये सही रास्ता है, लेकिन हम जब कार के लिए मैप डालते हैं उस कार में हम कितने बार ऐसे भटक जाते हैं, तो आप सोचो आप कितने भटक जाओगे। So now say again, if anyone preaches other gospel to you than what you have received at the time of your salvation, sir. और जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया उसके अलावा यदि और कोई तुम्हें सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। Do you believe that? Already cursed. That means those preacher what they are preaching on the TV, wrong gospels, they are already what? यानी वो पहले से श्रापित हो चुके, यानी वो जो टीवी पे या गलत सुसमाचार सिखा रहे हैं यानी वो पहले से ही श्रापित My ठहराए गए question, हैं। the biblical church, my answer, the biblical church will not change in according to the season and times. मेरा कहना यह है कि जो पवित्र वचन पर आधारित कलीसिया है वो जब समय या युग के अनुसार वो बदलता नहीं है। Okay, now pastor, are details matter in the biblical church? क्या पासवान पवित्र शास्त्र की जो कलीसिया उसमें डिटेल्स या विवरण बातें मायने रखते हैं? विवरण में सब Hebrews चीजें 8:5, करना। please. Turn to somebody and say, इब्रानियों details का matters. 8:5। बोलो ना किसी जोर से से. कहो प्रभु को हर एक विवरण में मायने रखता है, विवरण मायने So, रखता है। who serve the copy and shadow of heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle, for he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. पवित्र उपासना स्थान में उसकी सेवा उपासना स्वर्ग के व्यर्थात किया एक छाया प्रतिकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने की ही वाला था तब उससे चेतावनी दे दी गई थी। ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। You know, God said, He instructed divinely, make sure. प्रभु ने दैविक रूप से उसे चेतावनी दी थी कि तू See ध्यान रख that make all things according to the pattern shown you on the mountain. कि हर एक वस्तु
उसी की प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो हाँ। तुझे पर्वत पर That दिखाया means गया था। He's a God of details. यानी वो ऐसे प्रभु है जो हर बातों का विवरण में करते हैं, God of ध्यान details. देते हैं। परमेश्वर जो हर एक विवरण पर ध्यान in देते हैं। biblical church, पवित्र शास्त्र की कलीसिया He's a God of details. वो विवरण की कलीसिया है। Discipline matters for God. प्रभु के लिए शिस्त में रहना जरूरी है, अनुशासन में होना जरूरी है। Read Leviticus chapter 10 verse 1 and 2 and then और I'm फिर giving you so that you're not available, so I want to put you this in your heart. और There were two व्यवस्था people, I said. लव व्यवस्था का 1 और 2 में देना चाहता हूँ। Here, then Nadab and Abihu, the sons of Aaron, the priest, each took his censer and put in fire in it, but incense on it, put incense on it, and offered unauthorized fire or profane fire before the Lord, which he had not commanded them. हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपना अपना धूपदान लिया, उन्होंने उसमें आग भरी और उसके ऊपर धूप रखी। तत्पश्चात उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपवित्र अग्नि अर्पित की, जिसकी आज्ञा पर प्रभु ने नहीं दी थी। प्रभु ने नहीं दी थी. Hello. God has not commanded that strange fire, that unauthorized fire, that profane fire. You placed it before God and God did not receive it. देखो वो अपवित्र अग्नि जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, वो तुमने प्रभु के सामने आकर वो आग डाली और देखो क्या हुआ। Your worship matters to God. तुम्हारी आराधना प्रभु ध्यान देते In हैं। biblical church, this has been trained. पवित्र वचन का जो कलीसिया में You can't say that I don't know because you don't come. That's the problem. आप ये नहीं बोल सकते मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन आप जुड़ते नहीं है, आते Because नहीं है। you think that you know everything. That's the problem. आप इसलिए सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता You हूँ तो don't मैं take up नहीं the time जुड़ूंगा। and you don't want to study the Bible and you don't want to get that question be answered. आप समय नहीं निकालना चाहते और आप पवित्र शास्त्र के जो वचन है उनके सवालात का उत्तर आप सुनना नहीं Verse चाहते, 2. समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं आपके पास समय नहीं So है। fire went out from the Lord and devoured them and they died before the Lord. जीसस तब प्रभु के सम्मुख से आग निकली और उसने उसको भस्म कर दिया, वे प्रभु के सम्मुख मर गए। I was watching a video and I sent it on the group also. मैं एक वीडियो देख रहा था और मैंने ग्रुप पे भी वो They डाला were था। mocking God in the Hollywood. हॉलीवुड में वो प्रभु का ठट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे The थे। first fellow film 11 points. और पहला फिल्म के लिए उसको 11 पॉइंट्स दूसरा वाला some 8 points. और दूसरे वाले को कुछ 8 पॉइंट When मिले। it came to the God, it was 0 and everybody was laughing, mocking. और जब प्रभु के बारे में सवालात उठा तो कोई भी फिल्म नहीं, 0 पॉइंट्स And थे। they were laughing. तो सब लोग उसका They were mocking God, जोर-जोर से creation, हंसने लगे, nothing. मजाक करने लगे, हंसने लगे। And immediately few minutes, the fire struck California. और तुरंत ही थोड़े मिनटों में वहां पे आग लग गई। God is revealing through creation, I am existing. प्रभु सृष्टि के द्वारा दिखा बुझा रहे के दे हैं कभी। कि मैं अभी भी जीवित हूँ। I allowed the fire. बुझा के दे कभी. मैंने आग तो लगाई, आप तो बुझा के दिखा। That's God. वो परमेश्वर है। Biblical church पवित्र वचन की कलीसिया walks abiding in Christ's word and subjected to Christ. और वो प्रभु के वचन के अनुसार चलती है और मसीह की अधीनता में Turn to होकर somebody and चलती say, है। detail matters. कहो कि प्रभु को हर एक छोटा छोटा विवरण मायने रखता है। Details he has. प्रभु के पास हाँ। छोटे छोटे चीजों का विवरण है। Moses never knew the unauthorized fire they offered. Oh. मूसा को ये बात पता ही नहीं था कि उन्होंने अपवित्र अग्नि अर्पित की है। Aaron does not know the high priest. The unauthorized fire they offered his own children. आरोन जो महायाजक था उसको पता नहीं था कि उन्होंने अपवित्र अग्नि की धूप चलाई है। Biblical church is subject to Christ's words. एक पवित्र शास्त्र की कलीसिया हमेशा So प्रभु I के don't go वचन deeper के because I have a के अधीन में होती है। prophetic message for you. Numbers 20:11. और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास एक नबूवत के वचन है तुम्हारे लिए आज के लिए। और एक वचन पढ़ के फिर अंत करेंगे। I think we should take on Sunday morning this service, right? The Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. मूसा ने अपना हाथ उठाकर ऊपर उठाया और अपनी लाठी से 2 बार चट्टान पर प्रहार किया। Church, obedience. Moses obeyed God.
मूसा ने प्रभु की And आज्ञाओं को God माना। told him what to do, how to bring the water from the rock. तो प्रभु ने फिर उससे बताया कि वो चट्टान में That से means- पानी कैसे निकाले। Moses subjected to the biblical church. यानी मूसा पवित्र वचन की कलीसिया के अधीन में रहा। He knew without scriptural authority, I can't do anything. वो ये बात समझ गया, आत्मिक अधिकार के बिना मैं हाँ। कुछ भी आगे नहीं What बढ़ is सकता। scriptural authority? वचन में अधिकार प्राप्त करने का Meaning, मतलब क्या है? He is the author and finisher of your faith. यानी वही तुम्हारे विश्वास के कर्ता है। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। Okay, let me give one more. One more. Proverbs 30 verse 6. नीति वचन थे 6। Biblical church, एक वचन पर आधारित जो कलीसिया है, they will not add to his words, lest he rebuke you and you will found a liar. तो वो जो है अपने खुद के बोली नहीं बोलेगा, क्योंकि हाँ। प्रभु उन्हें डांटेगा। Hallelujah. Now you understand? God is the head of the church, the Bible says. बाइबल कहता है प्रभु जो है वो कलीसिया के सिर हैं। Amen. Are they with me? We cannot add to the Bible anything. वो बाइबल में Agreed. कुछ बड़ा चढ़ा नहीं सकता है। Huh? You cannot put your own revelation and bulldology. No, you वहां can't पे do खुद का headology. अपना प्रकटीकरण नहीं डाल सकते, अपना सर नहीं डाल सकते You हैं। headology, you cannot put head and God, अपना सिर का ज्ञान नहीं डाल सकते उसमें, खुद So का do ज्ञान not नहीं डाल add to his words, सकते। तो प्रभु के वचनों में घटबढ़ मत करो, lest he rebuke you अन्यथा वो तुमको प्रताड़ित and you करेगा are found a liar. और तुम झूठे कहलाओगे। Biblical church will not follow these things. तो ये पवित्र वचन पे चलने वाली They कलीसिया will वो not add ये सब anything नहीं to the करेगा। scriptures. वो वचन में और कुछ अपना खुद का नहीं डालेंगे। When I was called to one country to preach, एक देश में जब मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया you था, know, after 1 year they called me. 1 साल के बाद उन्होंने मुझे They बुलाया were था। asking me, give me your videos. We want to know what you preach and how you perform healings and miracles, signs and wonders, testimonies we need. तो फिर वो कहने लगा कि आपके वीडियोस हमें पहले जांचनी है, देखनी है कि आप चंगाइयाँ और भविष्यवाणियाँ कैसे करते हो। For 1 year I did not give any CDs to them. 1 साल के लिए मैंने उनको कोई सीडी नहीं दी मेरी। You know, if you're led by the Spirit, you will call me. If you're not led by the Spirit, you will not call me, I said them. उन्होंने कहा कि अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो आप जरूर मुझे बुलाओगे, अब पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता है तो आप मुझे नहीं For बुलाओगे। 1 year they were thinking on this word. और वो 1 साल के लिए यही बात सोच रहे They're थे, thinking, are we led by the Spirit or not? हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए हैं If या you're नहीं? led by the Spirit, you will call me. If you're not led by the Spirit, you will not call me. That's it. अगर पवित्र आत्मा तुम्हें अगवा करता है, चलाता है तो तुम मुझे बुलाओगे, अगर नहीं तो तुम नहीं बुलाओगे। Meaning, God has to send me to that city. That's it. यानी प्रभु ने मुझे उस शहर में My भेजना है। CDs, my teachings will not take me to there. मेरा I will not सीडी, go. मेरा टीचिंग हो तो वहां पे मुझे नहीं, उस देश में नहीं ले And जाएगा। after 1 मैं year, they जाऊंगा भी sent the नहीं। ticket and the invitation. और कुछ 1 साल के बाद फिर उन्होंने मुझे टिकट और इनविटेशन When I दिया, तब flew. भेजा, फिर मैं गया। I flew. When I landed there, जब मैं वहां पे पहुंचा, I saw 17 pastors all around, मैंने देखा 17 पासवान थे सब। and then said, "Are you a true man of God?" That is the first question. सारे 17 पास्टर थे, उन्होंने मुझे घेर लिया, कहने लगे आप तो सचमुच का प्रभु का दास We है, don't know anything about you. हम आपके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं I told जानते them, हैं। Did you prayed? क्या तुमने प्रार्थना की है, हमने पूछा। I walked into the places and the churches. They invited me. They had a very big meetings with all the sick people. और फिर उन्होंने मेरी मीटिंग लगाई, मैं बहुत सारे कलीसिया में गया और बहुत सारे बीमार लोगों की सभाएं उन्होंने रखी थी And वहाँ पे। every church, God Har- performed miracles. हर एक कलीसिया में प्रभु ने आके अपना कार्य There was किया। one pastor who was always, he's a biblical teacher. और एक पासवान है जो बाइबल Highly शिक्षण देते qualified. हैं, बहुत शिक्षक है, Very highly qualified, senior man. सीनियर दास है, And he is not agreeing with me. और वो मेरे साथ सहमत नहीं था। I said, okay. मैंने But कहा, in this ठीक है। church I have to preach. लेकिन उसी की कलीसिया में मुझे प्रचार And करना already था। people said, he is a man, he know that, this and all. So I said, okay, fine. सब लोग कहने लगे First only they नहीं, are putting fear in me. वो मेरे अंदर पहले डर डालने लगे उसके I विषय में। said, who लोग, cares? If I'm called by the Spirit will work. अगर आत्मा ने मुझे बुलाया तो आत्मा काम करेगा। I went there. The moment I stepped to the church, और जैसे मैं उस कलीसिया में मैंने पैर रखा, his wife had a tumor that busted. उसके बीवी के पेट में गांठ था, वो फट गया वहीं Even पर, that pastor never knew. और पासवान को भी पता नहीं था। And the wife said,
blood was oozing in the church. बीवी कहने लगी कि कलीसिया में सब खून निकल गया, So the tumor bursted. क्योंकि वो जो गांठ थी वो फट गई थी. If I'm led by the Spirit of God will perform. अगर मैं आत्मा के द्वारा चलाया गया हूँ तो why आत्मा I'm काम saying करेगा. this? क्यों मैं ऐसे करता A हूँ? biblical church एक पवित्र शास्त्र की subjected to खड़ी कलीसिया, Christ. वो जो मसीह के अधीनता में रहती है, abide in the words of Christ. वो प्रभु के इस वचनों में के Because अनुसार I चलती है. don't add anything to Christ's scripture. क्योंकि प्रभु के वचन से आगे मैं कुछ नहीं बढ़ा No, चढ़ाता. I will not add anything. मैं कुछ बढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं चढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा नहीं. नहीं, जोड़ूंगा नहीं. मैं कुछ प्रभु के वचन में Add. अपना शब्द नहीं चढ़ाऊंगा. हाँ, then read Revelation chapter 20, 22, 18 and 19. Are you there? Are you understanding? Are you understanding? Are you a biblical church? Come on, today you are assured. Biblical church. Okay. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this Bible book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in these books. प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय 18 वचन कहता है, मैं शपथ पूर्वक उन व्यक्तियों के लिए घोषणा कर रहा हूँ जो इस पुस्तक के लिए भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं, और उसमें यदि कोई भी उसमें से कुछ भी और जोड़ेगा और इस पुस्तक में से लिखे विनाश परमेश्वर उस पर You डालेगा. cannot add your words. तो आप उसके शब्दों में अपने शब्द नहीं जोड़ If you सकते. add anything, the plagues that is written in the Bible will come. और अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें जितने भी विपत्तियां, वो विपत्तियां तुम पर आएगी. So where it is written in the last book of the Bible. तो कहाँ पे लिखा है? बाइबल The New के अंतिम Testament. पुस्तक नए करार में ये लिखा हुआ है. Read next verse. One is plague. This is dangerous. तो देखो, विपत्तियां जो उस पर लिखी है जो आएगी, वो पहली चीज है. अगर उसके वचनों को The आप कुछ second बढ़ाओगे. thing is very dangerous. और दूसरी बात है, वो बहुत ही खतरनाक If चीज है. anyone takes away from the words of the book of this prophecy, one is adding, second one is taking away. तो फिर अगर उसमें कुछ बातों को वो बढ़ाएगा और कुछ निकालेगा. One is taking away, एक वचन में बढ़ाना, one is adding. दूसरा है वचन बढ़ाना या वचन में से कुछ निकालना. निकालना और जोड़ना, या बढ़ाना जोड़ना. नहीं, जोड़ना. God shall take away his part from where? From where? अरे बोलिए ना. सब लोग सीरियस हो गया. बिब्लिकल चर्च इज सीरियस. आई थैंक गॉड बिब्लिकल चर्च इज सीरियस लॉर्ड. तो प्रभु उसका भाग इतना भी सीरियस मत हो ताकि तुम कुछ समझा नहीं. टेक अवे हिज पार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ. तो जीवन की पुस्तक में से उसका भाग वो निकाल देगा. From the holy city, that means from heaven, from the things which are written in this book. पवित्र नगर में से, यानी स्वर्ग से, जो जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है. Are you there with me? Is it clear? Yes. So these teachings don't miss what I'm giving. It's very powerful. तो ये टीचिंग जो मैं दे रहा हूँ I उसको know मिस न you're करें. वो all बहुत very ही busy people. Gen Z people are very busy. One day, these two things. तो मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बिजी लोग हैं, बहुत जेंजी लोग हैं. हाँ. तो लेकिन ये दो चीजें देखो, उस पर ध्यान दीजिए. Give time to God. प्रभु को समय दो, निकालो. Give preference to God's kingdom. प्रभु के राज्य के लिए पहला This स्थान दे morning दो. when I woke up, आज सुबह जब मैं उठा, I was in very deep sleep. मैं बहुत बड़ी गहरी नींद I में जब felt था. somebody knocking on my heart. मुझे लगा कोई मेरे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है. And I woke up और in मैं my उठ- spirit. In my और मेरे spirit I woke up. आत्मा में मैं उठ गया. Physically I didn't wake up. शारीरिक रूप से In my नहीं उठा, spirit I woke up. मेरी आत्मा में उठा. I heard the voice. हाँ, तो फिर वो निकाल दिया. Voice I heard and said like this: Seek ye first the kingdom of God and his मैंने एक- righteousness, and all these things shall be added unto you. और फिर मैंने एक आवाज सुनी कि परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान दो और उसकी धार्मिकता को, और बाकी के सारे वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी. Amen. Matthew 6:33, right? So I got up from this scripture. और फिर इस वचन से ही मैं उठ गया. Lord spoke to me so many things that point of time. और प्रभु ने उस समय मुझसे बहुत सारे बातें की. This morning I want to encourage you. आज सुबह मैं तुम्हें एनकरेज करना चाहता You हूँ. need to be abiding in church principles. प्रभु के वचन में जो उसके सिद्धांत है, उस सिद्धांत में तुम्हें बने रहना है. Say with me, I will not do my own number. को मैं अपनी खुद का नहीं करूँगा. बोलो ना जोर से, I will not do my, all the church members, I will not do my own number. Church members जो नहीं है, I am not interested.
कहो will not do my मैं own कलीसिया के numbers. जितने मेंबर लोग हैं कहें मैं अपना खुद का ही नहीं करूंगा. You know, right? Say with me, I will abide by his word. कहो मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा. Those who are not the members of the church, you are just an attendee. I praise God. You are learning something and God bless you. जो इस कलीसिया के मेंबर नहीं केवल आप लोग अटेंड कर रहे हैं फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कुछ यहाँ से सीख कर ले जा This रहे is for हैं. everyone. Teaching is for everyone. टीचिंग सबके लिए है. But more specific is for the members of the church. सबसे अधिक ये कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए है. Amen. Amen.